Hello students, let's we start the chapter number 3, General Auspicious and Inauspicious Yogas. This chapter is aimed to discussing various auspicious and inauspicious yogas found by combination of various components of Panchang and some other general considerations to be kept in mind for selecting a proper movement to start on an act. ठीक है, जैसे कि आपने अब पिछले पढ़ा है तो जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो तिथिज है, डेज है, करन्स, योग्स, इन सभी का कम्बिनेशन से हम मिला के योग्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में हमें योग्स बताए गए हैं कि कौन कौन से योगा से, कौन कौन से कम्बिनेशन से कौन कौन से योग्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ तिथिज एंड डेज. फर्स्ट योग जो है, अगर नंदा तिथि 1-6-11 तिथिज और फ्राइडे आ जाए, और अगर भद्रा तिथि 2-7-12 और वेंसडे आ जाए, जया तिथि यानी कि 3-8-13 और ट्यूसडे आ जाए, रिक्ता तिथि 4-9-14 और सैटरडे आ जाए, एंड पूर्णा तिथि 5-10-11-30 and Thursday, if found together, a benefic yoga called Siddha Yoga is formed. Siddha Yoga is very benefic yoga. When you find the Muhurat, if there is nearby any Siddha Yoga in coming days, then we can say that it is a best yoga. Then we can do the auspicious works in this Muhurata. Okay. The next one is Mrityu Yoga. As the name shows that Mrityu Yoga, so we can understand it is unauspicious yoga. Okay. Nanda Tithi combining with Sunday or Tuesday. Bhadra Tithi combining with Friday or Monday. Jaya Tithi combining with Wednesday. Rikta Tithi combining with Thursday, and Purna Tithi is combining with Saturday, form an inauspicious yoga called Mritya or Mrityu Yoga, which is to be avoided in all good elections and especially in journey. ठीक है जी, जो मृत्यु योग है इसको हमने इनऑस्पिशियस योग मानते हैं, और ये किसी भी अच्छे काम को करने में और किस जर्नी के संबंध में इसको हमने अवॉइड करना है. द थर्ड वन इज़ अ ककरचा योगा. सैटरडे एंड 6th तिथि, फ्राइडे एंड 7th तिथि, Thursday and 8th तिथि, Wednesday and 9th तिथि, Tuesday and 10th तिथि, Monday and 11th तिथि, Sunday and 12th तिथि is combination form a malefic yoga called Kakracha Yoga. In other words, when total of day and tithi is equal to 13, this yoga is formed and is to be avoided in auspicious elections. ठीक है, तो जैसे कि सैटरडे है, तो सैटरडे क्या है, सैटरडे वीक का 7वां दिन है, तो अगर 6th तिथि हो गई तो दोनों का प्लस करके कितना आ गया, 13. ऐसे ही फ्राइडे द 6th डे, तो 7th तिथि प्लस करके 6 प्लस करके 13 आ जाए, तो इसको, मगर तिथि और डेज का जो आपसी प्लस करके हम जो डे निकलते हैं, अगर 13 आ जाता है तो उसको हम ककरचा योग कहते हैं. ठीक है, इट इज़ अनऑस्पिशियस योगा and should be avoided in auspicious election. The next one is Samvartak Yoga. First Tithi Pratipada on Wednesday and 7th Tithi Saptami on Sunday forms a malefic yoga called Samvartak Yoga. Next one is a Dagda Yoga. Sunday and 12th Tithi, Monday and 11th Tithi, Tuesday and 5th Tithi, Wednesday and 3rd तिथि, Thursday and 6th तिथि, Friday and 8th तिथि, Saturday and 9th तिथि is combination form Dagda Yoga, which is malefic and is to be avoided for all good election and especially in journey. Next one is a Visha Yoga. Sunday and 4th तिथि, Monday and 6th तिथि, Tuesday and 7th तिथि, Wednesday and 2nd तिथि, Thursday and 7th तिथि फ्रॉम अ malefic योगा कॉल्ड विश योगा, पॉइजन, जिसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि विश है, तो ये पॉइजन योगा. इट इज़ आल्सो अवॉइडेड इन गुड इलेक्शन.
अब इसमें एक नोट दिया गया है, जैसे वेंसडे है एंड सेकंड तिथि फॉर्म बोथ सिद्ध योगा ए बेनिफिक योगा और विश योगा बनाता है ए मेलिफिक योगा। व्हेन, अब ये कॉम्बिनेशन दोनों में शो हो रहा है, विश योग में भी और सिद्ध योग में भी। व्हेन ए बेनिफिक योगा coexist with a malefic yoga, the results of the benefic yoga will prevails। ये मुहूर्त चिंतामणि चैप्टर 1 श्लोक 42 में मेंशन किया हुआ है। अगर किसी समय एक अच्छा योग बन रहा है और एक मेलिफिक योग बन रहा है, तो दोनों में से जो बेनिफिक होगा उसको हम प्रिवेल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वन था हस्थाना योगा। संडे एंड 12th तिथि, मंडे एंड 6th तिथि, ट्यूसडे एंड 7th तिथि, वेंसडे एंड 8th तिथि, थर्सडे एंड 9th तिथि, फ्राइडे एंड 10th तिथि एंड सैटरडे एंड 11th तिथि फ्रॉम a malefic yoga called Hasthana yoga and is to be avoided in all good elections and especially in journey. Note: Sunday and 12th tithi also form Kakrocha and Dagda yoga. Monday and 6th tithi forms Visha and Hasthana yoga. Tuesday and 7th tithi form Visha yoga and Hasthana yoga. Wednesday and 8th tithi form Hasthana as well as Mrityu yoga. थर्सडे एंड 9th तिथि फॉर्म हस्थाना एंड मृत्यु योगा आल्सो, ठीक है। तो अगर तो दोनों में एक बेनिफिक बनता है तो हमने बेनिफिक को ही माना, अगर बोथ मेलिफिक है तो इट विल क्रिएट मोर मेलिफिकनेस। अब इस सभी के लिए एक चार्ट भी आगे बुक में मेंशन किया हुआ है, जिससे आप देख सकते हो भी कौन कौन से दिन अगर ये आ जाए तो कौन कौन सी तिथि हो और कौन सा दिन हो तो कौन सा मुहूर्त, मतलब कौन सा योग क्रिएट होगा, ठीक है। ऐसे ही उसके आगे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं डेज और नक्षत्र के। अब जैसे अमृत सिद्धि योग है, संडे एंड हस्ता, मंडे एंड मृगशिरा, ट्यूसडे एंड अश्विनी, वेंसडे एंड अनुराधा, थर्सडे एंड पुष्या, फ्राइडे एंड रेवती एंड सैटरडे एंड रोहिणी फॉर्म बेनिफिक योगा एंड आउट ऑफ द अबव Guru Pushya yoga is specially praised. An act started in these yogas will lead to success without obstructions. देखिए कितना अच्छा योग है अमृता सीधा सिद्धि योग। अगर किसी दिन ये कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है, तो कोई भी काम हमें मतलब लीड टू सक्सेस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस, बिना किसी रुकावट के वो काम हमें होएगा। नोट: ट्यूसडे अश्विनी कॉम्बिनेशन should be avoided in Muhurta for entering a house and a house construction. Saturday Rohini combination should be avoided in journey and similarly Thursday Pushya combination should be avoided in marriage. तो ये जो नोट दिया है इसका आपने ध्यान रखना है भी, अगर ये सिर्फ घर में जैसे एंट्री करने के लिए या फिर जर्नी के लिए या फिर मैरिज के लिए इसको हमने अवॉइड करना, ठीक है। Moreover, if Sunday plus Hasta falls on 5th tithi, Monday plus Mrigshira falls on 6th tithi, Tuesday plus Ashwini falls on 7th tithi, Wednesday plus Anuradha falls on 8th tithi, Thursday Pushya falls on 9th tithi, Friday Revati falls on 10th tithi, and Saturday Rohini falls on 11th tithi, it becomes a malefic yoga called Madhu Sarpisha. Madhu Sarpisha yoga combination of honey and poison and should be avoided in all good elections. But day and tithis are forming a bad yogas. That is why the name Madhu Sarpisha, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एक योगा है सर्वार्था सिद्धि योगा। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डेज एंड नक्षत्रास फॉर्म सर्वार्था सिद्धि योगास विच आर बेनिफिक योगा फॉर ऑल पर्पसेस एंड एक्ट स्टार्टेड इन देयर योगा लीड टू सक्सेस। ये चार्ट नीचे दिया गया है। एक तरफ डेज है हमारे, अगर डेज है नक्षत्र हस्ता मूला उत्तर फाल्गुनी उत्तर छाड़ा उत्तर भद्रपदा पुष्या श्लेषा है, तो ये अमृत सिद्धि योग सर्वसिद्ध योग बनाते हैं। दीज इंक्लूड्स ऑल अमृत सिद्धि योग्स एट डिस्क्राइब्ड अबव अपार्ट फ्रॉम अदर गुड योगा। इसके अलावा आगे है दग्धा योगा। भरनी ऑन संडे, चित्रा ऑन मंडे, उत्तर छाड़ा ऑन ट्यूसडे, धनिष्ठा ऑन वेंसडे, उत्तर फाल्गुनी ऑन थर्सडे, ज्येष्ठा ऑन फ्राइडे एंड रेवती ऑन सैटरडे फॉर्म अ मेलिफिक योगा कॉल्ड
Dagda yoga and should avoided in all good election, especially in journey. The next one is Yamghata. Yamghata योग. हाँ जी. Next one is a Yamghata yoga. Magha on Sunday, Vishakha on Monday, Ardhra on Tuesday, Mula on Wednesday, Ritika on Thursday, Rohini on Friday, and Hasta on Saturday forms Malefic yoga called Yamghata yoga and should be avoided in all good elections and especially in journey. ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑस्पिशियस हैं और कुछ इनऑस्पिशियस योग्स जो डे और नक्षत्र के कम्बिनेशन से बनते हैं. आगे हमें ये पूरा चार्ट दिया गया है. इसमें योगा जो फॉर्म डे और नक्षत्र के कम्बिनेशन से बने हैं उनका ये पूरा चार्ट है, ताकि आप रेडी रेकनर इससे देख के दिन में डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है ना, भी आज कौन सा दिन और उससे कौन सा योग क्रिएट हो रहा है. अब कुछ इसके आगे हमें मेलेफिक कम्बिनेशन फाउंड बाय तिथि एंड मंथ मासा शून्य तिथि दी गई हैं. द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ मंथ एंड तिथिज फॉर्म्स अ मेलेफिक योगा एंड शुड बी अवॉइडेड इन ऑल गुड इलेक्शंस. देर आर कॉल्ड मासा शून्य तिथि, जीरो तिथि ऑफ अ मंथ. जैसे कि चैत्र की मेलेफिक तिथि ऑफ ब्राइटर हाफ और मेलेफिक तिथि ऑफ डार्क हाफ, 8-9 जो तिथिस हैं और चैत्र मंथ की. ठीक है, तो यानी कि तिथि और कौन कौन से महीनों में. अब विशाख की 12वीं जो तिथि होगी दोनों की, ब्राइटर और डार्क हाफ की. ज्येष्ठा में 13 और डार्क की 14वां तिथि. अश्लेषा की 7वीं और 6वीं. ऐसे शर्वना, भद्रपदा और अश्विना, कार्तिक, मृगशिरा, पुष्य, मघा, फाल्गुन. ठीक है, इन सभी की जो तिथि मेलेफिक हैं और मंथ की उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है. बेसिकली ये योग्स जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं नक्षत्र के डेज और नक्षत्र के हो गए, मंथ और तिथिस के हो गए, ये सभी कम्बिनेशंस मोस्टली इनऑस्पिशियस ही मेंशन किए गए हुए हैं. ठीक है ना, और जैसे अमृत सिद्धि योग है या सिद्ध योग है, अगर जिस दिन ये हो तो हम कोई भी ऑस्पिशियस काम उसमें कर सकते हैं. फर्दर मेलेफिक कम्बिनेशन फाउंड बाय मंथ एंड नक्षत्र. अब महीने और नक्षत्र में कौन कौन से महीने जो मतलब मेलेफिक कम्बिनेशन योग्स बनते हैं उनके बारे में है. द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ मंथ एंड नक्षत्र फॉर्म्स आर मेलेफिक योगा एंड इफ दीज आर चूजन फॉर्म स्टार्टिंग एन एक्ट इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ वेल्थ. मासा शून्य नक्षत्र. अब जैसे चैत्र है, चैत्र की अश्विनी मंथ चैत्र है, नक्षत्र अश्विनी रोहिणी है, मंथ अश्विनी. ऐसे नक्षत्र और मंथ मासा शून्य नक्षत्र बताए हैं, ये उनकी डिटेल है. दीज आर कॉल्ड मासा शून्य नक्षत्र. ठीक है, यह टेबल में शो किया हुआ है. मेलेफिक कम्बिनेशन फाउंड बाय अ मंथ एंड अ मून साइन. अब महीना और चंद्रमा के साइन के अकॉर्डिंग कौन से मेलेफिक्स हैं. इन अ पर्टिकुलर मंथ ट्रांजिट moon transit in a particular rashi will form a malefic yod called Masa Shunya Rashis. The combination of month and moon sign forming the malefic yoga are given in table number 3.5. The next. ठीक है, तो यहाँ 3.5 नंबर मासा शून्य राशि दी गई हैं. ठीक है, इसमें से जैसे चैत्र का महीना है और एक्वेरियस में अगर चंद्रमा चल रहा है, और वैशाख है अगर पाइसिस में चंद्रमा चल रहा है. ठीक है, और ऑस्पिशियस कोई भी अच्छा काम ऑस्पिशियस एक्ट शुड बी अवॉइडेड इन द अबव कॉम्बिनेशंस, अदरवाइज इट विल एडवर्सली अफेक्ट द वेल्थ एंड फैमिली ऑफ द नेटिव. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ मेलेफिक कॉम्बिनेशन फाउंड बाय तिथि एंड नक्षत्र. अब कुछ नक्षत्र और तिथि का कम्बिनेशन है. कम्बिनेशन ऑफ प्रतिपदा, जैसे फर्स्ट डे है उत्तर अषाढ़ा आ जाए, सेकंड तिथि हो द्वितीय अनुराधा आ जाए, तृतीय हो ऑल 3 उत्तराज आ जाए. ठीक है, पंचमी हो मघा आ जाए, षष्टमी है रोहिणी आ जाए, सप्तमी है, तो ये सारे इनऑस्पिशियस हैं और इनको तिथि शून्य नक्षत्र कहते हैं. मेलेफिक कम्बिनेशंस फाउंड बाय तिथि एंड लग्ना. उसके अलावा the following combination of tithis and lagna will called तिथि शून्य lagnas and should be avoided in auspicious election. अब पहली तारीख और
प्रतिपदा तिथि हो, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न लगन्स को हमने अवॉइड करना है, ठीक है। अगर तृतीया तिथि हो तो लियो कैप्रिकॉर्न लगना को अवॉइड करना है। अगर पंचमी हो तो जेमिनी विर्गो लगना, इनको अवॉइड करना है। सप्तमी हो तो सैजिटेरियस कैंसर लगन्स को अवॉइड करना है। नौवीं हो कैंसर लियो लगन्स को हमने अवॉइड करना है। एकादशी और सैजिटेरियस स्पाइसेस लगन्स को अवॉइड करना है। त्रिदोषी हो टॉरस स्पाइसेस एंड लगन्स को। मासा शून्य एंड तिथि शून्य लगना आर मेलिफिक ओनली इफ मध्य देशा in all regions falling between Himalaya in the north, Vindhyachal in south, Pragya in the east, and Saraswati River Rajasthan in west. This will cover Rajasthan, Delhi, certain areas of Uttar Pradesh falling west of Pragya, Punjab, Himachal and some areas of Madhya Pradesh. ठीक है, तो ऐसे एरिया के हिसाब से ये जो प्रचलन है उसके हिसाब से हमें ये तिथि और लगन्स को अवॉइड करना है। अब उसके आगे हमें 28 बेनिफिक एंड मेलिफिक योगास दिए गए हैं विद वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ डेज और नक्षत्र 28 योगास आर फॉर्म्ड। द नेम्स एंड नेचर ऑफ दीज योगास आर गिवन बिलो। उनके नाम और जो मेलिफिक है या बेनिफिक हैं ये उसके सामने दिए हुए हैं। जैसे अनंदा है, ये बेनिफिक है। कालडंडा मेलिफिक है। धूम्र मेलिफिक है। धता बेनिफिक। सौम्य नाम से ही पता लग जाता है बेनिफिक। ध्वशा मेलिफिक। केतु बेनिफिक। श्रीवस्त्वा बेनिफिक। वज्र मेलिफिक। मधुवरा मेलिफिक। चैत्र मेलिफिक। मित्र बेनिफिक। मानस बेनिफिक। पद्मा बेनिफिक। ऐसे ये हमें आगे फॉर्म्स के हैं 28 बेनिफिक एंड मेलिफिक योगास। ठीक है जी, तो ये आपको इसमें बुक्स में ये इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं। इसके अलावा दीज योगास विल काउंटेड इन ऑर्डर ऑन डिफरेंट डे। जैसे तो ऐसे ही ये पूरा चार्ट दिया गया है भी जौन से दिन जो नक्षत्र हो गए उसके अकॉर्डिंग ये आपको योगा क्रिएट होगा। जैसे संडे और अश्विनी नक्षत्र आ जाए तो अनंदा योगा क्रिएट होगा। अगर मंडे है मृगशिरा वो आ जाए तो अनंदा योग होगा। ऐसे ट्यूसडे हो अश्लेषा आ जाए तो अनंदा योग होगा। एक तरफ योगास का नाम दिए गए हैं, उसके सामने डेज हैं। ये रेडी रेकनर टेबल आपको जल्दी बताने के लिए बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये और मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे योगा फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ तिथिज वार एंड नक्षत्र। ठीक है, तो ये जो योगास फॉर्म्ड हुए हैं ये तिथि वार और नक्षत्र तीन चीज़ों को लेकर चले हैं। जैसे त्रिपुष्कर योग, इफ़ ऑन संडे ट्यूसडे और सैटरडे देर इज़ अ भद्रा तिथि। भद्रा कौन सी? 2, 7 और 12 तिथि आ जाएं। एंड द सेम टाइम एनी वन ऑफ विशाखा उत्तर फाल्गुनी पूर्व भद्रपद्रा पुनर्वसु ऋतिका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इज प्रिवेलिंग, it will form त्रिपुष्कर योग। And any good or bad event taking place in this yoga will have a tendency to repeat itself 3 times. So this yoga should be avoided for all those auspicious when we can say that many happy returns of the day. तो अगर तो अच्छा काम करना है उसके लिए अगर त्रिपुष्कर में होगा तो अच्छा काम 3 बार रिपीट होगा। अगर बैड काम है तो वो भी बैड काम 3 बार रिपीट होगा। तो ये त्रिपुष्कर योगा की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अलावा है द्विपुष्कर योग। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ भद्रा तिथि